The Nagvans dynasty of Chota Nagpur ranks 5th amongst the 10 longest dynasties in the world. The House of Dulo, or the Dulo clan of Bulgaria, holds the record for being the longest dynasty in the world, stretching 2,890 years. While the Imperial House of Japan, or Yamato dynasty, stands second with 2,669 years of rule over Japan. The Hong Bang, or Lac dynasty of Vietnam, is third with a continuous reign of 2,639 years. And the Gojoseon dynasty of Korea stands at the fourth place with 2,225 years long dynastic history. And after these, at fifth place, the Nagvans dynasty stands proudly as the longest and only dynasty from India, with a continuous reign over Chota Nagpur for 1,931 years. नागवंशी राजाओं का लंबा शासन आखिर क्यों चल पाया, इस बात को समझने के पीछे उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि प्राचीन व्यवस्था जो यहाँ राजवंश के स्थापित होने के पहले जो थी वो मुंडा और उरांवों की व्यवस्था थी, और उनकी व्यवस्था के तहत जो पढ़ा सिस्टम था, जो जिसके तहत यहाँ की उनकी अपनी व्यवस्था चलती थी प्रशासन का, उसी प्रशासन के तंत्र को इन लोगों ने राजवंश की स्थापना के बाद आगे बढ़ाया. Based on the available documents and research, the origin of Nagvans dynasty can be traced back to 83 CE in a place called Sutiambegarh, which lies over 23 kilometers north of Ranchi in Jharkhand. It is believed that 21,000 Mundas under the leadership of Sutia Munda travelled from Rohtasgarh through Umedanda valley to arrive and settle down on this forested land. Sutia Munda was a great man with outstanding leadership abilities, and because of this virtue, the people took him to be their king. They also named their new home as Sutiambe. Later, another man amongst the Mundas named Madra Munda succeeded Sutia Munda based on his leadership abilities and his physical and mental acumen. हमारे छोटा नागपुर में अर्थात वर्तमान जो झारखंड राज्य है, यहाँ के राजा पहले मदरा मुंडा थे, और जो नागवंशी राजा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, ये मदरा मुंडा के बालपोस थे. हम लोग अभी खड़े हैं मुढ़र पहाड़ में. मुढ़र पहाड़ का मतलब हुआ जिनका सर हर लिया गया है. नागपुरी में सर को मुड़ कहते हैं, और इसलिए इनका नाम मुढ़र पहाड़ पड़ा. यहाँ पर जगह जगह पर गुफाएं हैं जिसको हम लोग खोह बोलते हैं. इन खोहों में जिधर भी खोदाई किया जाएगा तो लगता है मिट्टी का बर्तन का टुकड़ा है या ईंट का टुकड़ा इस टाइप का है. और यहीं पर महाराजा मदरा मुंडा जी का कचहरी है, जिसको राजा कचहरी बोलते हैं. वो कहते हैं कि वो यहाँ पर अपने सैनिकों के साथ मीटिंग करते थे, सभा करते थे, रणनीति बनाते थे. नागवंश कर जो स्थापना होलक ओकर पहले मदरा मुंडा के जाने के चाहिए. मदरा मुंडा कर
राजधानी रहे सुतियाम्बे। हम लोग आज खड़े हैं सुतियाम्बेगढ़ में, जो नागपुर के प्रथम महाराजा मदरा मुंडा जी का गढ़ हुआ करता था। ये दाहिने तरफ टीला जो है ये उनका गढ़ था, जो अभी मटिया मेट हो गया, जमींदोज हो गया। और वहाँ 2 तालाब रहे, अंधरिया और इंजरिया। यह अंधरिया तालाब में 64 ईस्वी में नाग फन कर नीचे एक बालक, नवजात बालक मिल्लक। Legend has it that during the reign of King Madramunda in 64 CE, a newborn child was found near Andheriya Lake, who was being protected by Pundarik Nag himself. When King Madramunda came to know about it, he took the child with him and went on to raise him as his own. The child was named Phani Mukut Rai, as he was found under the hood of Pundarik Nag. Phani Mukut Rai grew up to be a virtuous man who later assumed the throne because of his abilities. This was the beginning of the great Nagvansh dynasty. Sutyambegarh was the first capital of the Nagvanshis, after which the seat of power shifted several times from Sutyambegarh to Chutiagarh. ये देखिए, यह प्राचीन मंदिर है। इसका संवत है ईस्वी संवत आपका 1685 का है ईस्वी, और विक्रम संवत है 1742। मंदिर का प्राचीन मंदिर है। ये राजा का ये यहाँ गढ़ था। नागवंशी राजा का राजधानी चुटिया था। पहले चुटिया नागपुर था, बाद में छोटा नागपुर हुआ। और इस राजा का जो रघुनाथ सहदेव का वो लोग रहते थे। ये जो टूटा हुआ है, ये देखिए, उधर जो बड़का छात दिख रहा है पुराना, वही राजा का गढ़ था। और वहाँ से जब उस समय घर जंगल था, उस समय चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, तो एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। और उनको जब यहाँ से जाने का विचार हुआ राजा को, तो रघुनाथ सहदेव का, तो उस समय जो है कि उनको गुरु बनाए थे रघुनाथ सहदेव, और उनको मंदिर दान में दे दिया और यहाँ से चल गए। Then to Khukhragarh, Doisagarh, also known as Navratangarh, Palkotgarh, and lastly to Ratugarh, from where the Nagvanshis rulers reigned over Chota Nagpur for 1931 years. सुतियाम्बे फनी मुकुट रायकर पहला राजधानी रहे, से लेके सुतिया नागपुर कहत रहे। लेकिन इनकर बाद चौथा पीढ़ी में प्रताप राय सुतियाम्बे से राजधानी चुटिया ले लाले, और तब से इस क्षेत्र का नाम चुटिया नागपुर होलक। और चुटिया नागपुर में कुछ साल राज करे कर बाद चुटिया नागपुर से सीधे खुखरागढ़ चल गए, और खुखरागढ़ कर बाद डोसागढ़ या नवरतनगढ़ कर नाम से इके विख्यात होलक। और नवरतनगढ़ से सीधे इमन पायलकोट चल गए, और पायलकोट कर बाद नागवंश कर 61वां राजा प्रताप उदयनाथ शाहदेव रातू में अपन गढ़ बना ले, जहाँ आज जो राजधानी है वो 22 एकड़ ठाव में बनल है। और इकर आरंभ 1870 में हुए रे बताए रहे, लेकिन महल में जे स्थापना कर निर्माण कर समय बताल जाए है से 1901 कर है। After the demise of the 61st king of Nagvansh, Maharaja Pratap Udayanath Shahdev, his great grandson Chintamani Sharan Nath Shahdev was crowned as the 62nd king on 9th March 1950, when he was just 19 years old. He was the son of Kali Sharan Nath Shahdev and Rajmata Vaidehi Kumari. यहाँ लेट महाराजा बूढ़ा महाराज जी के सब कहे ना, महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव, उनका टाइम में ये पैलेस बनलक। अर्ली 90s में, आई थिंक 1901 में बाहरे वाला बिल्डिंग कंप्लीट होलक। धीरे धीरे करके सब और सब बिल्डिंग मने बनलक। और ये जो सामने वाला तालाब है, ये 120 years, 21 years old है। आज का जो झारखंड है, जिसका निर्माण 2000 में हो पाया, ये
संथाल परगना और छोटानागपुर के इलाकों का बना हुआ प्रदेश है। लेकिन इस प्रदेश में जो सबसे अनोखी बात है और विशेषताओं से भरा हुआ, वो राजवंशीय व्यवस्था का शुरुआत। लेट महाराजा का 7 सन्स रहा है, तो एल्डेस्ट फैमिली का हैविंग डिसेंडेंसी, और बीच में डैडी का ग्रैंडफादर जो सबसे बड़ा सन रहा है, वो महाराजा नहीं हो पा रहा है। फिर उनका 2 सन्स रहा है, वुमन भी नहीं रहा है, तो इनहेरिट हमारे फादरे कर रहा है। लेट बूढ़ा महाराज के हम फादर ग्रेट ग्रैंडसन रहे हैं, वही इनहेरिट कर रहे हैं, वही महाराजा बन रहे हैं। हमारी सौभाग्य है कि हम महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव के बारे में बात करत ही हियाँ। हमार सौभाग्य है कि वो हमार बड़ दादा रहे। महाराज दादा हमरे हमेशा उनके कहत रही और उनकर से बहुत कुछ सीखे कर, नागवंशी डायनेस्टी के बारे में, हमरे कर छोटानागपुर के बारे में, यहाँ कर मिट्टी के बारे में, यहाँ कर रीति रिवाज के बारे में, यहाँ कर जे आपने ह्यूमन रिसोर्स जो है, यहाँ कर सब जे समाज में रहे वाला समाज कर हर व्यक्ति के बारे में जो उनका सोच रहे, जो समझ रहे, उकर बारे में सीखे कर मौका मिल लग। In post-independence India, with the enactment and implementation of Zamindari Abolition Act 1950, Nagvanshi rulers gradually lost their dominion. However, their influence continued to remain over their loyal subjects who revered Chintamani Sharan Nath Shahdev as their king till he passed away on 10th July 2014. 1952 में जब जमींदारी अबॉलिश हो गया, मतलब जे भी राजा महाराजा रहें उनकर भी उनका टाइटल एक तरह से समाप्त हो गया। लेकिन टाइटल जो रहेला कोई सरकार का देवल आपने कही सके ना, कोई एक ही नहीं है, बल्कि जनता का दिल में, आम आदमी का दिल में जे महाराजा रहें, वो जमींदारी अबॉलिशन कर बाद भी वो जनता कर वास्ते महाराजा ही रहे। महाराज चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव प्रताप उदयनाथ शाहदेव कर बाद 1950 से लेकर के 52 तक शासन कर लें। उकर बाद तो जमींदारी या राजा महाराजा बनकर स्टेट इन्वेस्ट हो गलक देश में, लेकिन इनका जो पारंपरिक रूप रहे वो तो होते चलते रहे, भले शासन व्यवस्था ना रहे। और अपन आखिरी तक जब तक वो रहलें तब तक वो जनता का दिल कर महाराजा रहें। और ये बहुत ही हम कहिला कि सबकर से कोई भी बड़ा पोस्ट होल्ड करे से ज़्यादा बड़ चीज़ है कि जनता का दिल में जो प्यार रहे उनका लागे। ये जो शासन है पूरी तरीके से एक आप कह सकते हैं कि डेस्पोटिक रूल तो रहा, एक तंत्र रहा, एक राजा का शासन था जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। हम अगर दूसरी तरह से देख सकते हैं तो अशोक के समय को देखेंगे। अशोक एक राजा है, डिक्टेटर है, एक तरीके से एक राज्य का शासन एक तंत्रवाद है, लेकिन वो प्रजा की भलाई के लिए सोचता रहा और लगातार वो वर्षों तक शासन में रहा। तो जो राज्य प्रजा की भलाई के बारे में सोचेगा वो एक तंत्र होने के बावजूद भी वो जनता का समर्थन प्राप्त करेगा और लंबा शासन चल पाएगा। और इकर में आपने की एक चीज़ थोड़ा पीछे जाए पड़ी कि काहे उनके जनता इतना प्यार करत रहे, और जब महाराजा का टाइटल ख़त्म होल बाद भी, जमींदारी एबॉलिशन कर बाद भी उनके वहे प्यार, वहे रुतबा, वहे सम्मान मिलक। तो कहीं ना कहीं वो अपन जे व्यक्तित्व जे रहे उनकर वो बहुत ही सर्वसुलभ रहे, बहुत ही मृदुभाषी रहें, और गरीब जनता जे यहाँ कर आम आदमी हैं उनकर हित के बारे में जैसन राज जमींदारी कर पहले जे सोच रहे उकर बाद भी उके वो सोचते रहले। इसी तरीके से इनके शासन को भी देख रहे हैं नागवंशियों को, जो शासन चल पाया 62वें शासक के साथ। उन सभी शासकों के बीच में एक बात समानता के साथ देखी गई कि ये सब जनता की हित की बात को सोचते थे, और ये डेस्पोटिज्म एक एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म हो गया, जागृत एक तंत्रवाद हो गया। और इस जागृत एक तंत्रवाद को ही ध्यान में रखते हुए इनकी व्यवस्था मजबूत होती चली गई, जनता का समर्थन मिलता चला गया, प्रजा की हित की बातें ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सामने आती चली गई, और शासन का काल इनका मजबूत और लंबे समय तक चलता चला गया। The last bastion of Nagvanshi is the Ratu Fort, where the Nagvansh kingdom came to an end with the passing away of its last ruler.
The heir, Prince Gopal Sharan Nath Shahdev, also passed away on 28th June 2010. महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपने जनता से तो अपार स्नेह प्रेम करते थे, लगाव था उनको, अपनत्व था, अपनापन था। उतने ही स्नेह और प्रेम उन्होंने अपने परिवार को दिया। उनकी पत्नी महारानी प्रेम मंजरी देवी, बामरा स्टेट जो क्लास 1 रूलिंग चीफ स्टेट था उड़ीसा का, उसके राजा साहब की इकलौती बेटी थी और बहुत गुणी थी। महाराजा साहब, महाराजा चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव और महारानी प्रेम मंजरी देवी की 4 बेटियां और 1 बेटे थे। King Chintamani Sharan Nath Shahdev had 4 daughters, Madhuri Manjari, Kalpana Manjari, Tripti Manjari, Gayatri Manjari, and a son, Gopal Sharan Nath Shahdev. एक चीज़ हम डोरेमन के बता सकीला कि एक डैडी बताते रहे कि यहाँ का गद्दी कभी खाली नहीं रहेला। वो काज निकाले हमके हमेशा बताते रहे कि यहाँ का गद्दी कभी खाली नहीं रहेला। तो वो बताते रहे जब लेट महाराजा का डेथ होलक तो वो नहीं रहे यहाँ, वो हॉस्टल में रहे RKC में, राजकुमार कॉलेज रायपुर में। तो प्रिंसिपल के खबर गेलक तो उनके उस समय आवे में 2-3 दिन लागलक। तब तक उनके बर्फ़ में रहे लेट महाराजा के। और फिर जब वो आए तो वहाँ चिंतामणि पूजा होलक, बकरा कटलक और उनकर अंगूठा से महाराज साहब का तिलक होलक। Before King Chintamani Sharan Nath Shahdev passed away, he handed over Ratu Fort and the welfare of his subjects to his elder daughter, Princess Madhuri Manjari Devi, who also happens to be the Rajmata of Vijaygarh, situated in Uttar Pradesh. Since then, she has been looking after the fort and the people serving there. And has been diligently observing royal customs and has kept the traditions alive. 2014 में ही डेथ होलक उनकर। उकर बाद से उकर एक दिन पहले वो हमार हाथ पकड़ के कह रहे हैं कि तो देखबे, बस इतने कह रहे हैं। तो एक हमार मन में अलग की काले कहले तो हम एक वो कर ले ली कि अब हमके रातू कोई भी तरह और ये इतना बड़ा छोटा नागपुर का धरोहर है तो इके बचाए के ही रखे है। ये रातूगढ़ में 103 कमरा है और इकर स्वरूप बर्किंघम पैलेस से बहुत कुछ लेल जा है। और सोसाइटी ले भी कुछ न कुछ रातू, स्पेशली रातू ले कुछ न कुछ करे है। सबसे पहले तो यहाँ का मैनेजमेंट और यहाँ इतना स्टाफ है, मोर देन 150 स्टाफ इंक्लूडिंग पंडित्स। तो और इतना पूजा, दुर्गा पूजा, रथ यात्रा, एवरीडे भगवती चिंतामणि कर पूजा होवेला। तो उकर खर्चा कैसे चली पहले ये हमारे दिमाग में आलक। तो उकर पहले हम इंतज़ाम कर ली और फिर स्टाफ के हम कोई के नहीं निकला ली, सबके रख ली और इमन के एक तक राई की। And in this way, the 1931 years old Nagvansh dynasty comes to an end at the Ratu Fort, which is living testimony to the glorious history of the Nagvanshis and a proud heritage of entire Chota Nagpur. In his 81 years long reign, King Pratap Udayanath Shahdev gave numerous chunks of land in Ranchi to many, including several people working under him.
Presently, several important offices and institutions grace these lands like Ranchi University campus, GEL Church campus, Gosner College campus, Ranchi Club campus and Pepe compound. कि लेट महाराजा का इतना ज़्यादा डोनेशन है छोटानागपुर में, हाफ ऑफ रांची डोनेटेड है, और एक भी स्टैच्यू और एक भी स्लैब उनका नाम से नखे पूरा छोटानागपुर में, पूरा रांची में इनफैक्ट। एंड हम चाहिला कि कम से कम उनका एक स्टैच्यू रांची में कम से कम वो लागे चाहिए, बिकॉज हाफ ऑफ रांची इज डोनेटेड बाय महाराजा उदय प्रताप नाथ शाहदेव। In 1957, King Chintamani Sharan Nath Shahdev was the youngest independent MLA from Ranchi constituency in the Bihar Legislative Assembly. देखिए, नागवंशी राजवंश था वो दुनिया के उन चुनिंदे राजवंशों में था जो जनता से लगातार जुड़ा रहा, और जुड़ाव इतना ज़बरदस्त था कि 1957 में महाराजा चिंतामणि शरण शाहदेव को जनता के दबाव में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा, और जीत भी इतनी शानदार मिली कि उन्होंने सभी विपक्षी उम्मीदवारों की जमानत को जब्त करा दिया। Later he also served as a member of Bihar Legislative Council from 1962 to 1966. He was also a lifelong senator of Ranchi University and life patron of Ranchi Club. He was member of Railway Board too. और महाराजा चिंतामणि शरण शाहदेव न सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी के लाइफ सीनेटर थे, बल्कि कई सामाजिक संस्थानों से भी वो जुड़े रहे थे। उसके बाद वो MLC भी बने, और उनके सुपुत्र युवराज गोपाल शरण नाथ शाहदेव जब हटिया से चुनाव लड़े तो ये परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट नहीं थी। फिर भी जब युवराज साहब चुनाव लड़े तो जनता ने इन्हें सहर्ष स्वीकार किया और दो बार उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। तो ये नागवंशी राजवंश का जनता से सीधा जुड़ाव था, जो कि लगातार जनप्रतिनिधि देता रहा इस समाज से। सबसे पहले तो ये जो तालाब है, ये 114 की 15 ईयर्स हो गया, कभी सफाई नहीं हो है यहाँ। तो यहाँ दुर्गा विसर्जन, काली विसर्जन और सब स्कूल का सरस्वती विसर्जन होएला। तो सबसे पहले हम सोची कि कैसनो किसी भी तरह से इके साफ कराए के और इकर सुंदरीकरण करेले, क्योंकि पब्लिक कर भी इकर में इंटरेस्ट है। छठ वट भी बहुत होएला, सब कोई आवे ना, तो तालाब हम इमन ले एकदम इमन कर ले बनाए के हम इमन के दे दी। और दूसरा बात, ये पैलेस तो पब्लिक के लिए हमेशा ओपन है, और पब्लिक का बहुत सपोर्ट है हमके। हर दशहरा, हर रथ यात्रा में हम उमन के बुलाईला और उमन से सपोर्ट लेविला। उमन के हमके बहुत हेल्प करे ना यहाँ कर आदमी, और हम मीटिंग्स भी करीला उमन साथे। और दूसरा बात, जितना स्कूल्स है यहाँ जे लेट महाराजा से और डैडी से डोनेटेड रहे, तो उकर में भी हम चाहिला कि वो और बेटर कंडीशन में हो। King Chintamani Sharan Nath Shahdev too donated large areas of land for creation of educational institutions, hospitals and other centers for community service. Kartik Urao College Gumla, Maharani Prem Manjari Devi School for Girls Rantu, Adivasi Bal Vikas School Rantu, Maharani Prem Manjari Hospital Rantu and many others to name a few. The Nagvans dynasty exerted tremendous influence over Chotanagpur and its people from 83 CE to 2014 CE as the longest dynasty of India, which was only possible because of their unmatched system of governance. छोटानागपुर के नागवंशी महाराजाओं का सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि वो कभी जनता से टैक्स नहीं लिए। बिना रेवेन्यू के लगभग 2000 साल तक किसी एक राज्य को संचालित करना बिल्कुल नियमानुसार, कि सभी पर्व त्यौहार, सभी रीति रिवाज का पालन हो रहा है और जनता से टैक्स नहीं लिया जा रहा है। ये अपने आप में अजूबा था, जिसको कि कैप्टन कैमेक ने स्वीकार ही नहीं किया कि एक राज्य व्यवस्था, एक राज्य तंत्र पूरे 2000 वर्षों तक बिना रेवेन्यू, बिना टैक्सेशन के कैसे चल सकता है। इसलिए ये विश्व में
एक ऐसा नागवंशी राजवंश सामने आता है जो जनता के समर्थन पर ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक शासन में रहकर लोगों की भलाई की बात सोचता रहा और आज के दिन में इतिहास में ये इतिहास बनाकर हम लोगों के सामने खड़ा है। रातू जो किला है ये आज भी बिल्कुल खड़ा है और बिल्कुल जो सोशल नॉर्म्स है उसके आलोक में यहाँ का जो किनशिप सिस्टम है, यहाँ का जो नातेदारी व्यवस्था है, नातेदारी व्यवस्था के आलोक में मुंडा लोगों को बड़ा भाई माना जाता है। इनकर परिवार वाला मन बताते रहे कि जेखन मरंगोम के जयपाल सिंह मनकर गढ़ में जात रहे पायलकोट या रातूगढ़ में, तो अपन सिंहासन में बड़ भाई कर नाते उनके बैठात रहे। काहे कि एखनो नागवंशी परिवार वाला मन मुंडा समुदाय के अपन बड़ भाई माने ना, सेले नागवंशी बहु मन मुंडा मन के अपन भैंसुर कर नाते अपन अचरा मुड़ में चढ़ाए ना और उनके सम्मान देना। जो राजवंश चल पड़ता है मजबूती के साथ, उसके पीछे और उसके नीचे कुछ मेरिट्स होते हैं और ये मेरिट्स को समझने के लिए आज के दिन में यदि शोधार्थी और राज्य के दूसरे इलाकों से भी यदि कोई अध्ययन करने के लिए आते हैं तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और विशेष ध्यान के रूप में जो यहाँ का किला है, जो फोर्ट हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए। झारखंड जनजातीय बहुल प्रदेश है। यहाँ पर नागवंशियों का शासन काफ़ी लंबे समय से रहा है। नागवंशी सिर्फ झारखंड के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है कि ये सबसे लंबी शासन व्यवस्था रही है और झारखंड में लगभग 6 जगहों पर अलग अलग इन्होंने शासन किया, अपनी राजधानी बनाई और अंत में रातू में इनका राजधानी था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस विषय पर, इतनी सुंदर व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक कार्य नहीं हो पाए हैं। And in this way, even today, the walls of Ratu Fort stand proudly, narrating the stories of the glorious and unparalleled history of the Nagvans dynasty, which lasted for 1931 golden years.